रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मदन गोपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मदन गोपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मदन गोपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गोपाल अमर रहे, डॉक्टर मदन गोपाल अमर रहे।
Good morning. Guy Kawasaki rightly said, if you have to put someone on a pedestal, put teachers. They are the heroes of the society. As we have seen today, we have gathered here in this auditorium to pay homage to one of the greatest ethnists of Rajasthan, Dr. Madan Gopal Ji. A visionary, a teacher who taught his students to reach the zenith in their chosen profession. He has given to the society innumerable IAS officers, doctors, engineers, lawyers, and committed educationists like himself. As we all know, he did his graduation in science and was a postgraduate both in political science as well as history. He received the gold medal for his MA history as he topped in the entire Rajasthan. He did his PhD under the guidance of the great historian Dr. Dashrath Sharma on the topic Bikaner State Mein Prashasnik Sudhar. Dr. Madan Gopal was an educationist and institution in himself. His students are there in the prominent positions in the society, be it administrative services, armed forces, medical services, police forces, research, you name it, and they are there. They are the brand ambassadors of the values inculcated in them by Dr. Madan Gopal himself. He was a philanthropist too. He gave special attention to the students from rural background. He guided them with his values and educated them to be successful in their life. Hence, he also spread the light of education in rural India, where the heart of the country lies. He believed that India could progress by giving the right education to its people. He started serving as a teacher in the Arya School in the year 1952, and with his tireless efforts as well as a vision to provide quality education, he established the Bhopalwala Arya Higher Secondary School in the session 1959-60. He raised it to the pinnacle of glory that we all know it had. He was an avid sports lover himself and promoted it at all levels. The football team of the DAV school was the best in the region. He was a visionary and wanted to provide quality education at a low cost. He was instrumental in the development of DAV College, Law College, and B.Ed College. An educationist par excellence, he has left behind his values in the form of his students who are further spreading them in the profession they are in. He may not be in a person amongst us today, but his values are being propagated through his students in all walks of life. May his vision become immortal as he has himself. Many of us who are sitting here today have been closely associated with him. And as I could see, he was there before you in your memories. So I invite you all, if you could come to the stage and share a few memories, a few moments that you spent with him,
and the way he actually guided you in the life that you are living today. I now invite you to please come to the stage one by one and share your views. यद्यपि मैं उनसे पढ़ा नहीं, मेरे से 6-7 साल बड़े थे, और जिस संस्था को उन्होंने संभाला उस संस्था को भारद्वाज साहब जज थे यहाँ, उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने उस संस्था को शुरू किया। गंगानगर में इंटरमीडिएट कॉलेज था सरकार का। इसके सिवाय जो संस्थाएं बनी उनमें सबसे पहले सनातन धर्म स्कूल, और ये संस्था वो धार्मिक भावना से उसको उन्होंने बढ़ाई। ये एक सीनियर जज थे और गंगानगर में उनका निवास था। वो थोड़े राजनीति में भी दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने ये संस्था बढ़ाई। इस संस्था में ध्यान डालने का काम मदन जी ने किया। जब तक मदन जी नहीं आए थे, इस संस्था का स्वरूप न लोगों को पता था, न एजुकेशन की तरफ लोग इसमें जाते थे। पर जब वो आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। बड़ा काम ये कि जिन लड़कों को एडमिट करना है, एडमिट करने के बाद वो ये कोशिश करते थे कि इस लड़के की क्वालिटी निखरे। उन्होंने सिर्फ शिक्षा देके डिग्रियां नहीं बांटी, उन्होंने क्वालिटी बांटी, क्वालिटी पैदा की। और यही वजह है कि अगर गंगानगर जिले के अधिकारियों को जो रिटायर हो गए, बड़ी बड़ी नौकरियों में रहे, उनकी संख्या देखें तो सबसे ज्यादा वो है जो गोपाल जिसे पढ़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद उनको मिला है, और उनके देख देख उनके कंपटीशन में तो नहीं कहूँगा मैं, पर उनसे प्रेरणा लेके उनके बराबर खालसा कॉलेज शुरू हुआ, और जिसमें करनैल सिंह जैसे लोग जो बहुत बड़े वकील थे गंगानगर के, उन्होंने दिलचस्पी ली। मस्तान सिंह जी ने दिलचस्पी ली, राजनेताओं ने, और वो संस्था भी राजस्थान में बहुत बड़ा नाम कमा चुकी, और उसने भी क्वालिटी पैदा की। मेरा मतलब ये है कि एजुकेशन में अगर क्वालिटी नहीं है, अफसोस इस बात का है पूरे देश को, मैं यहाँ नहीं कह रहा, JNU जैसी संस्था को, जिसको नेहरू ने इसलिए बढ़ाया कि इंटरनेशनल नॉलेज, डेमोक्रेसी के पैटर्न पर, सोशलिज्म के पैटर्न पर कोई स्टूडेंट पूरे देश का आके पढ़े और खुले विचारों से वहां रहे, किसी दबाव और बिना उसके। वो संस्था भी अब खराब हो गई, बिगड़ रही है, क्योंकि उसमें राजनीतिक दखल है। ये हमारी जो गंगानगर जिले की संस्थाएं हैं, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं मदन गोपाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये अफसोस भी जाहिर करना चाहूँगा कि वो संस्था कुछ नहीं रही, और
सुरजीत सिंह जी बैठे, जब तक रहे इन्होंने उसको बचाए रखा, क्वालिटी रही, लोगों को पता रहा कि खालसा कॉलेज है, और अब वो अड्डा बन गया। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में एक ही अलख जगा रहे हैं, वो है सूदन साहब। अब अफसोस इस बात का है कि सूदन साहब का हायर सेकेंडरी एजुकेशन का काम है, तो नींव तो ये बना देते हैं, नींव बढ़ गई, पर नींव से काम नहीं चलता। जब तक हायर एजुकेशन ना मिले तब तक इंसान आगे बढ़ नहीं सकता। जो कंपटीशन है सारे देश की, सर्विसेज के कंपटीशन और जिंदगी में कंपटीशन, वो सब के सब कॉलेज की एजुकेशन के बाद शुरू होते हैं। इसलिए जिस बच्चे को ये बढ़ा के भेजते हैं, पूरा तैयार करके भेजते हैं, वो 4-5 साल कौन सी जगह रहे ये उसको पता ही नहीं लगता। बीकानेर की तरफ जाए या पंजाब की तरफ जाए तो कोई दिखता नहीं ऐसी जगह कि जहाँ ऐसी संस्थाएं बहुत बढ़िया संस्था हो। क्योंकि गंगानगर जैसे जिले में अगर एक संस्था ही ऐसी रह गई जहाँ 3-4 थी, तो बाकी जगह विक्षण हुआ है। तो मैं समझता हूँ आप सब जो यहाँ आए हैं, शिक्षा में दिलचस्पी, शिक्षण में दिलचस्पी रखते हैं, कुछ पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं। मदन जी में सिर्फ एक कमी थी, मैं किसी दिवंगत के बारे में कमी नहीं कहनी चाहिए, कमी क्या थी, उनको चिढ़ थी राजनीति से, वो राजनीति नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे को जब मैं मिलता था, बहुत दफा घर पर मिलता था, स्कूल में मिलता था, बहुत दफा बैठते थे, गप्पे मारते थे, पर मेरे बारे में उनका ये विचार था कि उल्टे रास्ते जा रहे। मैंने उनको एक बार कहा भी, मैंने कहा मदन जी, इस देश में जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं, शिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, चाणक्य से बड़ा तो कोई शिक्षक नहीं। हमारे देश में चाणक्य का नाम शिक्षकों में सबसे ऊपर है, पर उस शिक्षक ने भी ये चोटी बांध के और ऐसा विद्रोह किया कि चंद्रगुप्त को बना देश की राजनीति का परिवर्तन कर दिया। ऐसा पतन हुआ था साम्राज्य का, हिंदुस्तान का, जिसमें भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अत्याचार, हाहाकार मचा हुआ था। उसके खिलाफ शिक्षक निकला। लोग कह रहे चाणक्य नीति, उन्होंने सब हथकंडे अपनाए जो भी हथकंडे हो सकते हैं, और उन हथकंडों को अपने लिए नहीं, लोग आज राजनीति में हथकंडे करते हैं, हो सकता है चाणक्य जैसे ही हो, पर वो अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं। चाणक्य जैसा एक ऋषि, एक महान आदमी था जिसने और पूरे देश के लिए किया, एक और को राजा बनाने के लिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि राजनीति हम लाए ये तो अच्छी बात नहीं, स्कूलों में, कॉलेजों में, पर राजनीति में दखल देना, वो हम गुण पैदा करें अपने बच्चों में, अपने पढ़ाए हुए लोगों में, कि वो राजनीति को स्वच्छ कर सके।
अगर राजनीति स्वच्छ नहीं होगी तो हम कितने अच्छे अफसर बना लें, कितने बड़े इंजीनियर बना लें, हम तो खुश होंगे कि हमने इतने इंजीनियर निकाल दिए, और वो इंजीनियर जाके ऐसे निकलेंगे कि लूट मचाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो सूदन साहब से, हालांकि जो इन्होंने साम्राज्य बना रखा है, एक साम्राज्य ही कहूँगा मैं, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा हाई स्कूल के लिए, कोई मेरी रिक्वेस्ट तो नहीं है, पर गंगानगर की रिक्वेस्ट है कि हायर एजुकेशन की कोई व्यवस्था न हो, उसके कोई बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी देन गंगानगर को होगी, क्योंकि यही उम्मीद हमको बची और यही सच्ची श्रद्धांजलि मदन गोपाल जी को है कि हम जो उन्होंने किया, बड़े खुश होते थे वो जब उनका कोई चेला एससी मिलता था, जब कोई एसपी उनको हाजिरी देने जाता था, बड़े खुश होते थे। इसलिए खुश होते थे कि मैंने इसको पढ़ाया, तैयार किया, ये पहुंच गया वहां। तो वो चीज जो है अब बंद हो रही है, और मैं चाहूंगा कि हमारे गंगानगर में भी वो परंपरा कायम रहे, और उसकी उम्मीद आज हम मदन गोपाल जी को श्रद्धांजलि देते वक्त ये कामना करें कि ये संस्था भी उस श्रेणी तक पहुंचेगी और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं मदन जी को, क्योंकि मदन जी तो ना उनके बच्चे शादीशुदा थे ही नहीं, अकेले ही रहे, उनके भाई परिवार, और मेरे बिल्कुल जिस गांव का मैं हूँ पंजाब में, उसी के पास 5-6 किलोमीटर पर इनका गांव था, एक ही साथ। तो उनसे लगाव पारिवारिक था, उसका जिस तरह से उन्होंने जिंदगी गुजारी एक संत की तरह, वास्तव में वो शिक्षक भी थे और संत भी थे। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ, और उनकी जिंदगी पर हम सीखें और कोशिश करें कि अपनी जिंदगी जीते वक्त ये ध्यान रखें कि अपनी जिंदगी का असर भी यही हो समाज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो यहाँ कई लोग होंगे जो मदन जी से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए थे और वो अपने विचार व्यक्त करना चाहें, लेकिन मुझे फ़िलहाल नाम याद आ रहा है महेश जी पेड़ीवाल का, प्लीज़। तो और प्रोफेसर ओपी गुप्ता साहब, हाँ जी प्लीज़। ओपी गुप्ता साहब और मैं एक साथ पढ़ते थे और हम दोनों ही मदन जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और मदन जी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपने स्टूडेंट्स में जो उनके अंदर स्पार्क है, जो उनके अंदर योग्यता है, जो उसके अंदर संभावना है, तो उसको वो पहचान कर उसे अवसर देते थे, उसको मार्गदर्शन देते थे। और मेरे ख्याल से सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में यदि मदन गोपाल जी और उनका मार्गदर्शन न आया होता तो शायद वो इस मकाम पर नहीं होते जहां आज हैं। तो मैं सूदन साहब का ख़ास तौर से इसलिए आभारी और ऋणी हूँ कि उन्होंने मदन गोपाल जी की प्रतिमा लगाने में भी मतलब पूरे इलाके के अंदर पहल की है, और वो वास्तव में उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल ओपी गुप्ता साहब को मंच दे रहा हूँ, वो संक्षेप में अपनी बात प्लीज़। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नौजगे पब्लिक स्कूल और सूदन साहब का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, पुराने सभी शिष्यों की ओर से, कि उन्होंने एक महान शिक्षाविद को, अपने गुरु को, और इस रूप में याद किया
और एक प्रकार से यूँ मान लीजिए कि ये पूरा हॉल भर भी सकता था अगर बहुत ज़्यादा हम इसको प्रचारित करते और करते, लेकिन रियल में कहीं छोटा सा कुछ पढ़ा न्यूज़पेपर में और जिनकी वास्तव में भावना जुड़ी हुई थी, तो वो सब यहाँ पर स्वेच्छा से पधारे। अच्छा, रोशन नाम है। कच्ची पहली और पक्की पहली बोलते थे हम आर्य समाज मंदिर में, वहाँ से लेकर, और उस वक्त हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैं उसी भोपाल वाला आर्य हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी रहा। ललित जी, अमरचंद जी बोरड वगैरह बैठे हैं, हम सब एक साथ ही पढ़ते थे। उस वक्त मदन जी का, डॉक्टर साहब का विद्यार्थियों से जो प्रेम था वो तो था ही, लेकिन एक बड़ा खौफ भी था। हिम्मत नहीं होती थी भी कोई भी विद्यार्थी जो है वो कहीं इधर से उधर हो जाए। गैलरी में जो वो सामने खड़े हो जाते थे तो सारी गैलरी खाली हो जाती थी। पूरे बरामदे में या गैलरी में कहीं भी कोई एक विद्यार्थी, कोई मजाल थोड़ी है कि भी दिख जाए। ये उनके अनुशासन का कमाल था। उसके बाद हायर सेकेंडरी उस वक्त होती थी। मैं बाद में 5 साल तक एसडी कॉलेज का विद्यार्थी रहा। वे साइंस के अध्यापक थे और मैं कॉमर्स का छात्र था, तो उनसे क्लास में तो कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत बार उन्होंने हमें क्लास में पढ़ाया। जब भी कोई क्लास खाली होती थी और उनको मौका मिलता था तो वो हमें बुला लेते थे। उस वक्त एग्रीकल्चर का भी एक कोई छोटा सा टॉपिक होता था, हमें क्यारियाँ अलॉट की होती थी। हम अपने क्यारियों में काम कर रहे होते थे और वो अगर फ्री होते तो वो हमारे पास वहीं उस क्यारी में ही, उस खेत में कह दो, लॉन में ही आके बैठ जाते थे। हमारा कॉमर्स का शायद पहला बैच था ये उस वक्त 1965-66 का। जिस दिन मैंने 31 जुलाई 1972, मुझे याद है, मेरा एमकॉम ABST का रिज़ल्ट आया। मैं उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। मेरी प्रकृति के वो अनुकूल नहीं था और मैंने सोच लिया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। 1 अगस्त को मैं डॉक्टर साहब से शाम को उनके निवास पर मिला। ललित जी की तरह मैं भी उनके प्रिय छात्रों में था और शायद उन्हीं का ही कई प्रभाव रहा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसा विभाग मैं 1 महीने की सैलरी देकर और छोड़कर आया। 2 अगस्त को उन्होंने मुझे कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर छोड़ना है तो तू छोड़। और हमारे यहाँ उस वक्त इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर उस वक्त टीचर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अनऑफिशियली तो आज से जो है क्लास लेनी शुरू कर दे 1 पीरियड। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर अपना रिज़ाइन किया, 1 महीने की सैलरी जमा कराई। 7 अगस्त को मैं वहाँ से रिलीव हुआ और 8 अगस्त को मैंने MD कॉलेज एज ए कॉमर्स लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया। 31 दिसंबर 2008 तक लगातार 37 साल मैंने उस संस्था में काम किया और गुरुजी का हमारे इस भविष्य के निर्माण में, करियर के निर्माण में जितना भी योगदान रहा है, उनको शब्दों में उनको कोई बखान नहीं किया जा सकता। ज़्यादा बात न करते हुए मेरे जीवन पर उनकी बहुत बड़ी छाप है। विशेषकर लगन से, सिंसियरिटी से, ईमानदारी से, मेहनत से जहाँ आप काम कर रहे हैं उस संस्था के प्रति काम करना, ये हमने उनसे सीखा है। अभी माननीय एहतराम जी ने एक सुझाव दिया सुदन साहब को कि आप शहर में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एक बहुत बढ़िया संस्था चला रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए ऐसी ही एक संस्था की ज़रूरत है। अगर सुदन साहब को याद हो तो मैंने ये
बात कई बार इनके साथ साझा की थी। हेतराम जी का तो आज सुझाव आया है। मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि ये एक कॉलेज और को एजुकेशन नहीं तो गर्ल्स कॉलेज जो है वो इस प्रांगण में ज़रूर खोलें। ये बात मैं कईयों से कहता था। मुझे एक व्यक्ति मिले ऐसे जिन्होंने मेरी बात को माना और एट प्रेजेंट हम अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के नाम से 4 साल से कॉलेज हम चला रहे हैं। आज भी मैं इस मंच से सुदन साहब को एक बार फिर ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी कोई पहल करते हैं तो मेरी तरफ से जिस प्रकार की भी सेवा आप चाहेंगे, आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं ये वचनबद्धता व्यक्त करता हूँ कि आप जिस प्रकार की सेवा भी हमसे चाहेंगे वो देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। एक बार पुनः आप सब थैंक यू। Denise to please come to the stage and share her memoirs. की प्रतिमा अनावरण और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नोज के विद्यालय में आए हुए इस प्रांगण में माननीय श्रीमान जी सूदन साहब, मैडम सूदन और सभी पदों पर आसीन शिक्षाविद, संपादकगण और मदन गोपाल जी के परिवार के सभी सदस्य आज इस हर्ष के साथ, हालांकि ये समय कुछ उनके यादों को हमें तंग कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बड़े हर्ष के साथ सबसे पहले मैं और मेरा परिवार और सभी अतिथिगण जो है सूदन साहब को बहुत ही धन्यवाद और उनके प्रति अभिवादन प्रकट करते हैं, क्योंकि एक डिवाइनली पावर डॉक्टर मदन गोपाल एक डिवाइनली पावर से कम नहीं थे। उस महान आत्मा को आज इन्होंने साक्षात रूप में इमोर्टल किया है और एक मैसेंजर के रूप में खड़ा कर दिया है प्रतिमा बनाकर कि वो आज वर्तमान पीढ़ी को भी संदेश दे रही है और आने वाले न जाने कितनी भविष्य की पीढ़ियों को ये संदेश मिलता रहेगा कि ये त्याग, सहनशीलता, अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और सादगी से जीवन जो व्यतीत करता है वो व्यक्ति समाज और राष्ट्र को कितने आगे पथ पर विकसित करने के लिए ये राष्ट्र के कर्णधार पैदा करते हैं। डॉक्टर मदन गोपाल एक साधारण व्यक्तित्व नहीं था, उनका एक चुंबकीय प्रभावी व्यक्तित्व और शिक्षा के हर कंसेप्ट को खुलकर जो है वो प्रकट करते थे। आज हमने इनको देखा है बेनीवाल जी को, लेकिन जिस समय हम पढ़ते थे तो हमें वो सोवियत रूस के साथ इनका संबंध जोड़ते थे। गरीबों के मसीहा कहकर हमें इनकी प्रतिमूर्ति बनाकर कंसेप्ट को क्लियर करते थे। तो मैं सबसे पहले ये धन्यवाद देती हूँ कि न जाने कितनी पीढ़ियों को ये मैसेंजर संदेश देता रहेगा और वो आगे बढ़ने की प्रेरणा और प्रेरक के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। हम उनको कभी भुला नहीं सकते, लेकिन सूदन साहब के उन भावों की मैं अनूठे भाव देखो, संपर्क इनका बहुत सी संस्थाओं से रहा है, मेरे से भावी वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मिस्टर सूदन साहब ने इनकी प्रतिमूर्ति जो बनाई है, क्या इनके अंदर एक अनूठा भाव जिसने श्रद्धा और भक्ति को एक गुरु के प्रति सिद्ध करके सच्चाई के रूप में हमारे सामने खड़ी कर दी है और हम इनका अभिवादन नहीं करते। हम आज ये सभी दुआएं और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सूदन साहब के सामने अभी था कि हायर एजुकेशन, मैं कहती हूँ इस दीवानली पावर के साथ इतनी शक्ति है कि हायर एजुकेशन इसी विद्यालय में आप देखेंगे कि
कि कितने बच्चों का जीवन जो है आगे बढ़ेगा। वो हर बच्चे के साथ हर प्रतिभाओं का आदर करते थे, हर शिक्षक का आदर करते थे। ना उनको किसी प्रकार का नकारात्मक रवैया था, ना किसी प्रकार की उनमें प्रतिशोध था। निस्वार्थ और अवैतनिक सेवा करके आज एक शिक्षक चमकता है और उसके साथी कम नहीं है। श्रीमान राजा राम जी आपके बीच में बैठे हुए हैं, सुरजा राम जी हैं, ये सब जो बैठे हैं संपादक गण हैं और जो भी बैठे हुए हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं, तभी बैठे हैं, नहीं तो यहाँ तक चल कर आना भी बड़ा कठिन है, आया नहीं जाता है, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कह सकते। लेकिन वो महान आत्मा जो गूंज रही है और जो आज सब कुछ देख रही है, क्यों नहीं ये प्रगति करेगा ये विद्यालय, इसमें 4 चांद लगेंगे और दिन दुगने रोज चौगने ये विद्यालय उन्नति उत्तरोत्तर करता जाएगा। हमें बड़ा हर्ष होगा कि यहाँ पर गंगानगर नहीं पूरे समाज के बच्चों का जीवन जो है बनेगा। उनका मुख्य उद्देश्य ये था, आदर्श मूल्य और नैतिक मूल्य यही थे कि सच्चाई और ईमानदारी और कर्मठता के साथ विद्यार्थियों के जीवन को निखारना है, तराशना है। ये हीरे हैं देश के, राष्ट्र के, समाज के पथ प्रदर्शक हैं, क्यों नहीं इनको तराश कर हम समाज को सौंपें कि एक नई दिशा के अंदर ये ले जाएं। तो इसीलिए वो एक पर्दे के पीछे भी रहकर एक रिमोटर का कार्य करते थे। उनको सामने आने और तारीफ और अतिशयोक्ति का कोई शौक नहीं था। वो अपने व्यक्तित्व को इस तरह से रखते थे कि चाहे कोई भी दूसरा काम करे उसके कंधे को थपथपाना है और हमें कैसे भी है विद्यालयों को आगे बढ़ाना है। बहुत से विद्यालयों को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत से बच्चों का जीवन, कोई IAS है, कोई RAS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है और कितने ही लीडर हैं, कितने ही वकील हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके संस्कार छाए हुए आपको मिलेंगे। जो उनके संपर्क में रहा है वो उनके चुंबकीय व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का ऐसा अवगुण नहीं है कि वो एक सीधी सड़क, सीधी दिशा से दूर हट जाए। जो भी विद्यार्थी सीधी दिशा में नहीं चल रहा है तो उससे वो मोड़ने के तरीके भी बहुत जानते थे। इंसान को इंसान बदल सकता है, न कि किसी डराने से, धमकाने से। उसके हट्टे को परिवर्तित करना वो जानते थे कि किस प्रकार मानव को बदला जाता है, कैसे उसकी सोच को बदला जाता है। एक बिगड़े हुए शिष्य को वो एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में समाज को देते थे कि दुनिया देखती रह जाती थी, वो पेरेंट्स देखते रह जाते थे जिनसे वो बच्चा कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन आज वो बच्चा IAS के पद पे बैठे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने बच्चे ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। इससे हमारा समाज, राष्ट्र, गंगानगर जिला ही नहीं, भारत से प्यार करते थे। वो भारत के महापुरुषों का चारित्रिक वर्णन करके उनके व्यक्तित्व का, उनके गुणों को बच्चों को सुनाते थे। तो इससे न जाने बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता था। अच्छे संस्कार देना, आज वो कहते थे पेरेंट्स का सबसे बड़ा दायित्व है। जब संस्कार अच्छे मिलेंगे तो वो बच्चों की जड़ें मजबूत होगी और वो समाज मजबूत होगा और राष्ट्र मजबूत होगा। बालक शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं शिक्षाओं को वो बहुत जोर देते थे कि कहते थे यू वांटेड ए स्प्रेड ऑफ लाइफ ऑफ एजुकेशन इन एवरी स्टेप इन द सोसाइटी। उनका ये रवैया था कि ये शिक्षा की लहर, ये शिक्षा की जोत हर जगह फैले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशमान होकर भारत के अंदर ऊंचाइयों को छू सके हमारे विद्यार्थी। जब कोई उनसे कहता बालिका शिक्षा पर क्यों सब जोर देते हो, तो वो कहते थे यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट ए मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल मैन, you educate a woman, you educate a woman, she whole family progress। वो पूरे परिवार का, 11 परिवारों का प्रोग्रेस करेगी
और पुरुष जो है वो एक ही परिवार को लेकर उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र, बालिका शिक्षा और बालकों की शिक्षा सभी पे जोर देने का प्रयास किया। उनका अंतिम यही उद्देश्य था कि ये शिक्षा की अलग जोर बहुमुखी पर जो है विकास छात्रों का होना चाहिए और इससे ही हमारे राष्ट्र के ऐसे कर्णधार बनेंगे कि हमारा देश जो भारत है वो बहुत सी ऊंचाइयों को छूकर अपना नाम रोशन करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज उस मैसेंजर का संदेश सच्चा यही है कि हम उनकी आत्मा को सांत्वना देने के लिए शिक्षा की जोत जो है सभी मिलकर, जो हमारे लिए, परिवार के लिए जो भी हमें योगदान देना है, हम सभी तत्पर रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे आपके साथ। और ये विद्यालय जिस परिसर में आज हम इकट्ठे हुए हैं, आप ये मत सोचिए कि हम थोड़ी सी मूर्तियां इकट्ठी हुई है, ये अरबों में है। यही प्रकाश की लहर उनके संदेश को सच्चे रूप में फैलाएंगे। उनके व्यक्तित्व के जैसे अनेक व्यक्तित्व और महान शिक्षा व त्याग करेंगी और उसमें अपना अपना योगदान जैसा भी होगा हम सभी मिलकर करेंगे। शायद धन्यवाद सुदन साहब को कि एक भावना को समझकर इमोर्टल किया है। हम सभी उनके प्रति आस और हमेशा के लिए जो है आशावान रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये विद्यालय उत्तरोत्तर गति में तीव्रता को प्राप्त करे और खूब प्रगति के मार्ग पर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, ma'am. I now request Ram Swaroop Ji Manju to please say a few words. हेलो, आज 9 सितंबर श्री डॉक्टर मदन गोपाल जी की पुण्यतिथि पर आए हुए सभी मेहमानों को मेरा नमन प्रणाम। वैसे डॉक्टर साहब के बारे में जैसे गुप्ता जी ने बताया, मुझे मेरे भाई ललित जी, सुदन जी, मैं सुदन जी को कहता हूँ, सुदन जी आज आपने एकलव्य वाला काम किया है अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए। जो आपने प्रतिमाएं आज उनके जन्मदिन पे आपने जो लगाई है यहाँ, ये निश्चित तौर से मुझे आज नेहरू जी के वो शब्द याद आ रहे हैं जब नेहरू जी गांधी जी के देवस्थान पर, जब नेहरू जी ने कहा कि माना कि इस देश का एक बहुत बड़ा हमारा मार्गदर्शक चला गया है, लेकिन वो शरीर से गया है, उसकी ज्योति हमेशा पूरे भारत में फैलती रहेगी। डॉक्टर मदन गोपाल जी का जो आज आपने प्रतिमा लगाई भाई सुदन जी, ये उनकी ज्योति जो है आपके स्कूल में, जैसे अभी कहीं ना कॉलेज का बेनीवाल जी ने कहा कॉलेज में स्थापित है, वो ज्योति आपके यहाँ जलती रहेगी। डॉक्टर मदन गोपाल जी के बारे में, चूँकि मैं इस संस्था में पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे 10-15 साल तक इस संस्था के अंदर एज ए सदस्य के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने उनमें एक चीज़ देखी जो हम पढ़ा करते थे कि जैसे विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं कि काक चेष्टो बकोध्यायी स्वान निंद्रा, काक चेष्टो बकोध्यायी स्वान निंद्रा अलभारी गृह त्यागी। मैंने मदन गोपाल जी में ये 5 गुण आखिर दिन तक ये पाए। जैसे गुप्ता जी ने कहा जो वो स्कूल में घुसते थे, उनको कौवे जैसी उनकी आंखें, उनको पता था कौन सी क्लास में कौन सा टीचर, कौन सा विद्यार्थी। वैसे वो जो है कौवे की जैसी उनकी चेष्टा, भूले जैसा ध्यान उनका, स्वान जैसी निद्रा कभी बुझाए। और अलबारी और गृह त्यागी तो वो आपको पता ही है, वो जहाँ भी रहे अपने गृह के त्याग। लेकिन वो माता जी के इतने भगत थे, माँ को वो आखिरी दिन तक अपने हाथ से रोटी करके जो खिलाते थे। वो कहते थे कि आदमी का निर्माण एक माँ ही करती है, जननी के जिसको, उसका मैं कर्ज जो है वो मैं पूरे जीवन तक भी जो है मैं भूल नहीं सकता। इसलिए भाई सुदन जी, जैसे वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से अच्छे विद्वान सामने बैठे हैं, उन्होंने जो हमने जो पढ़ा था, हम जो वैसे तो क्या है कि एक इंग्लिश के अंदर होता है कि wealth is lost, nothing lost, health is lost, something is lost, और character is lost, everything is lost।
वो एक ऐसा कैरेक्टर थे, वो अपने बच्चों में उन्होंने दिया है, अपने जीवन में सिर्फ चरित्र दिया है। वो न धन की बात करते थे और न ही वो कोई स्वास्थ्य का वो सोचते थे राजा की, लेकिन वो उन्होंने जो कैरेक्टर दिया, आज उस कैरेक्टर का ही कारण है सुजन साहब, आप हैं, राजा राम जी हैं, चाहे गुप्ता जी हैं, चाहे उनके जितने हजारों, हम उनकी अगर ये बात करें तो शायद कई दिहाड़े लगे उनके शिष्यों के बारे में बताने। उनमें एक जो मैंने देखा, मैं 15-20 साल तक मैं उस संस्था का सदस्य रहने के बाद में देखता, वो बहुत कम तो खाते थे, बहुत साधारण सा उनका पहनावा था, लेकिन उनकी आंखों में जो तेज था, वो विद्यार्थी वाले 5 लक्षण आखिर दिन तक वो एक विद्यार्थी के रूप में रहे। वो शिष्य भी थे और एक शिक्षक थे। हमने पहले मैंने 2 आदमी देखे मेरी समझ में। एक तो हमने केशवानंद की, कभी स्वामी केशवानंद की हमने कभी, मैंने जब तक पढ़ा, मैंने 5 साल पहले मुझे थोड़ा पता लगा, मुझे केशवानंद जी की जात का पता नहीं था कि वो जाट है, ढाका गोत्र का है। पता नहीं कैसे लोगों ने उसे जाट बना दिया और फिर ढाका गोत्र। केशवानंद भी एक शिक्षाविद, जिस तरह से उन्होंने जो चलाई, ठीक ऐसे ही जो डॉक्टर मदन गोपाल ने बिना किसी जाति के भेदभाव के, वो एक अच्छे बच्चे की पहचान जो उनकी आंखों से पता लग जाता था, वो इस तरह की उनकी जो एक सोच थी कि आजकल तो पता नहीं के लोग के तुम एक्सरे करा लो, पानी आँख ही एक्सरे, वो बच्चे जो सारा कुछ अंदर से ही पता लगा लेते थे। इस तरह के सोच के व्यक्ति भाई सुजन साहब, हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। पूरा समाज इस बात से लिए कि आपने एक शिक्षाविद समाज को, एक शिक्षाविद की प्रतिमा लगाई है जो, और वो प्रतिमा आपकी संस्था को एक इस तरह की ज्योति देगी। हमेशा आपको जो है, जिस बात पे जब भी कभी चर्चा होते थे, मैं मेरे भाई ललित से आपसे जब बात करता था, तो डॉक्टर साहब का एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसके बारे में तो अगर कहते किताबें लिखते, शायद भाई ललित भी अखबार चलाते हैं, ये थक जाएंगे डॉक्टर साहब। तो आज उनकी इस पुण्यतिथि पे सारे मतलब क्या, ये जो बिल्कुल सुजन साहब उनके विचारों पे है कि वो हमेशा किसी भी फंक्शन को वो ये चाहते थे कि दिखावा नहीं करना, जो कुछ करना है वो बहुत शॉर्ट में, बहुत साफ और बहुत सुथरा। तो सुजन साहब, आप इसके लिए भी बहुत आभार, मतलब धन्यवाद के पात्र हैं। अभिनंदन आपका किया जाए उतना ही कम है। हमें आप लोगों ने बुलाया, याद किया, हमें ये थोड़ा डॉक्टर मदन गोपाल जी जैसे एक शिक्षाविद के मौके पे, उनकी प्रतिमा के मौके पे हमें भी बुलाया है, ये भी आपका बहुत बड़ा बड़पन है। थैंक यू। Radha Ramji Bishnoi to please say a few words. 9 सितंबर है और आज से ठीक 1 साल पहले मेरे वो आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत, यहाँ बैठे हुए सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि राजा राम और डॉक्टर मदन गोपाल के भौतिक शरीर अलग था, आत्मा बिल्कुल एक थी। मैं कई बार सोचा करता था कि ये संबंध इस जन्म के नहीं है, ये पिछले जन्म के संबंध हैं। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ भाई ललित जी ने मेरा एक लेख छाप करके लोगों के सामने रखा है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ एक बातें आपको डॉक्टर साहब की बताऊंगा। भाई साहब ने एक जिक्र किया कि वो राजनीति से चिढ़ते थे। मैं डॉक्टर मदन गोपाल के मेरे से ज़्यादा नज़दीक कोई नहीं था, सबसे ज़्यादा नज़दीक और हर बात मेरे से शेयर किया करते थे। करसाना वाला वो आंदोलन चल रहा था और उस वक्त चौधरी श्री भगवान जी, डॉक्टर मदन गोपाल जी और मैं बैठे हुए थे। चौधरी श्री भगवान जी और मदन गोपाल जी आपको इस क्षेत्र का एक दूत समझते थे, जो
पता नहीं कितने लोगों की वो कल्पना करते थे कि ज़रा कल्पना करो कि उनकी क्या हालत होती है अगर एहतराम बेनीवाल नहीं होता, और वो आफ्टर एहतराम बेनीवाल कौन आएगा। आप में बड़ी अपार श्रद्धा थी, इसलिए नहीं कि मेरे सामने, मैं सामने बैठा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे रियल कज़न हैं, मेरे आदर्श भी हैं, और दोनों की बहुत सारी समानताएं मैंने देखी है। चाहे वो स्टेज पर जा करके कुछ भी बोलते होंगे घर में, मेरे मौसी जी के सामने, कभी इन्होंने सब्जी का इंतज़ार नहीं किया और न कभी इन्होंने कुछ बनने का इंतज़ार किया। जो भी रोटी रात की पड़ी हो, ताज़ी पड़ी हो, उस पर मिर्च ली, छाछ डाली थोड़ी सी, खा करके और चलते बने हैं। मुझे वो दिन याद है कि मैं इस स्कूल में नौकरी लगने के लिए नहीं आया था, मैं मेरी मौसी से मिलने आया था। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं मिलने के लिए आया था। पहले भाई साहब से मिला तो एक टूटी सी साइकिल भाई साहब के पास लगा, भी मैं तो दिन भर तो यहाँ मिल में रहूँगा, और उसके बाद में शाम को अपने घर चले गए। और इसी दौरान भाई सुधराम जी को साथ लेकर मैं डॉक्टर साहब से मिला और ये यात्रा शुरू हुई। लेकिन एक ऐसी यात्रा, एक अनूठी यात्रा, राजाराम को इतने लंबे टाइम तक प्रिंसिपल बनाना। जिस दिन डॉक्टर साहब ने चेयर छोड़ करके मेरे हाथ पकड़ के और उस पर बिठाया, कुर्सी पर मुझे बिठाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किसके गले में उतरेगी कि आज मदन गोपाल जी बैठे हुए हैं 2 अगस्त को, और 3 अगस्त को राजाराम बैठ जाएगा यहाँ। मैं कहा डॉक्टर साहब किसी के गले उतरेगी नहीं। तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि मैं सिर्फ किताबों तक और स्कूल के निर्माण तक ही सीमित था राजाराम जी। आपके रिश्ते मैं देखता रहा हूँ लगातार, आपके रिश्ते लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, और आपका व्यवहार स्कूल को बेटर बनाने के अंदर खूब आपको मदद करेगा। उनका बड़ा आशीर्वाद मिला। हालांकि वो किसी अवार्ड के मोहताज नहीं थे, लेकिन जिस दिन मैं राष्ट्रपति पुरस्कार लेके आया उन्होंने मुझे चूमा। डॉक्टर मदन गोपाल जी की एक विशेषता थी, 3 फुट का डिस्टेंस रखा करते थे सबसे, लेकिन मेरे माथे पर जब चूमा तो मेरे को पता नहीं क्या उस वक्त अनुभव हुआ। मैं कल्पना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी लोग दोनों बैठे हुए थे, दोनों ने मेरे को चूम करके और बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी। डॉक्टर साहब को के अंदर इतने स्ट्रिक्ट का रूप में आप लोगों ने जो शिष्य हैं उन लोगों ने देखा होगा, मैं उनको एक महान विनम्र व्यक्ति मानता था। इतने पोलाइट, इतने विनम्र, जिसकी कल्पना नहीं कर सकती, तो इतने विनम्र थे, और इतना विश्वास, अटल विश्वास, जो भी बात कह दी उसके अंदर अटल विश्वास, ये डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी। मुझे याद है कि इतने मजबूत आदमी, माता जब गुजर ली है, माता जब गुजर ली, पहले जाते थे घर में तो माता जी के साथ खेला करते थे। अगर माता जी नहीं रही तो मेरे को टेलीफोन किया, राजाराम आ जा। मैं क्या बोल के माता जी नहीं रहे, मैं चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माता जी के साथ मेरे भी संबंध बहुत ज़्यादा थे, लंबे टाइम तक रहा, इसलिए तो फिर कर नहीं, आंसू निकालने की जरूरत नहीं है। माता जी अब इतने मजबूत, श्री राम जी गुजरे उतने ही मजबूत, बिल्कुल यूँ खड़े रहे, कोई आंसू नहीं भाई के लिए। और राम जी जब गुजरे तो मैं उनको लेके गया सुखसेन ढाणी के अंदर, खैरपुर वाले ढाणी के अंदर, तो उसको चादर को उठा करके और चल दिए से राम जी, एक बार बोले चल दिए राम जी यूँ कह के, और ऊपर जाके बैठ गए। ऐसे व्यक्ति का मैंने दूसरा रूप भी देखा। हम 8-10 दिन वहाँ रहे ढाणी में, और 8-10 दिन के बाद में जिस दिन हम आने लगे, विमल ने भी जाना था, सबने जाना था, हम जब आने लगे तो एक कुत्ता था वहाँ ढाणी के अंदर, एक कुत्ता पड़ा हुआ था। मुझे वापस मुड़ के
और मैं भी सिर उठता है मेरे को जब मैं डॉक्टर साहब का वो रूप देखता हूँ। राजाराम जी सब अपने अपने घर जा रहे हैं और ये बेचारा ठप के रो पड़े। उनका डॉक्टर साहब राम जी के वक्त आपने जो है, माता जी के वक्त आपने जो है, ये उनके बहुत मालिक थे, इसका कोई मालिक नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको डॉक्टर साहब, लेकिन ये रूप भी उनका था। इस तरह का मतलब इस तरह का मन, स्वच्छ मन, और मैं हमेशा ही वो केवल मात्र अपना इष्ट देव को मानते थे, लेकिन रिचुअल यानी किसी पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। कभी किसी पूजा पाठ में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन स्वामी केशवानंद जी को महान आदर्श मानते थे। स्वामी केशवानंद जी को आदर्श मानते थे और इसी तरह से श्री भगवान जी के साथ अटूट मित्रता के संबंध थे। और शिष्यों का तो जितना स्वामी जी केशवानंद जी के प्रति उनका रेस्पेक्ट था, उतना ही अपने शिष्यों के प्रति स्नेह था। वो कभी याद करते, ललित को याद करते, कभी संतोष को याद करते, कभी पुराने शिष्यों को याद, लाजपत को याद करते जो उनके घर रह करके पढ़ा करते थे। उनको पुराने शिष्यों देवतराम को याद करते, कभी मुखियार सिंह को याद करते। उन बच्चों को वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। और जब कभी भी कोई अधिकारी बन करके, कोई डीजी बन के आया है, कोई आईएएस बन के आया है, तो पहले दफ्तर में मेरे पास आते, मैं डॉक्टर साहब के पास लेके जाता और डॉक्टर साहब इतने प्रसन्न होते देख करके। मैंने कहा डॉक्टर साहब महाराष्ट्र का डीजी है ये कोई क्रिश्चन है, इसको बड़ी मुश्किल से फर्स्ट क्लास आई थी इसकी। मैंने कहा वो जो हुआ है वो आपकी कृपा से हुआ है। डीजी केरला जब आया तो उसके पजामा कमीज पहन रखा था, चप्पल पहन रखी थी, डीजी केरला। मैंने कहा साहब ये कौन है? तो उसका यहाँ से कटा हुआ था, अरे ये तो ऋषि है। मैंने कहा ऋषि नहीं है साहब, ये डीजीपी केरला है। तो डीजीपी केरला है तो तेने ये क्या पहन रखा है? सर आया था गुरु जी से मिल लूँ और आपका भी दर्शन कर लूँ। तो बड़े विनम्र स्वभाव के, और मुझे तो जो कुछ बनाया, चाहे वो नेशनल अवार्ड था, चाहे यूनेस्को अवार्ड था, चाहे गवर्नर अवार्ड था, या कुछ भी था, वो सारी की सारी डॉक्टर साहब की कृपा थी, उनकी मेहरबानी थी। और किसी भी चीज़ के लिए कभी ना नहीं किया, सामने कागज रख दिया, उसको दस्तखत कर दिए। इतना 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 अटूट विश्वास। यहाँ तक भी अपने बच्चों के एजुकेशन से संबंधित बात थी। राजाराम जी ने कहा इस विमल को, मैंने कहा जी इसका एडमिशन करा देते हैं। फिर तो ये जिम्मा तो मैं तो, और राम जी कहीं गए हुए नहीं है और मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल वैसे भी, ये तो वैसे भी अब तो ड्यूटी मेरी बनती है। मेरे को याद होगा शायद मैं लेके फुर्सत गया और किन हालातों में गए हम लोग, रुकते हुए बहुत ज़्यादा बरसात थी, उससे बीटेक किया। और आज मेरे खेत का ये ऐसी है वहाँ इसार में, इसार में मैंने कहा मेरे वाले खेत में पानी लगा देना मेरे बहुत। तो न केवल इसका अतुल के बारे में बड़े चिंतित रहते थे। फिर राम जी क्या करोगे इसका? मैंने कहा इसको डेंटल में करा देता हूँ। कर देगा क्या वो? मैंने कहा बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं गौरव से मिला, वो कहने का गुरु जी सीट तो सारी फूल होगी, मुझे नहीं पता इसको तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और इससे आगे डॉक्टर साहब कहने लगे एक थोड़ा सा काम और हो जाएगी अगर पीजी कर ले तो। मैंने कहा 16 लाख बोलता हूँ मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज वो नहीं मांग रहे, मैं मांग रहा हूँ इसका कहीं पीजी वगैरह में एडमिशन कर दे। तो शानदार पीजी से गोल्ड मेडलिस्ट बन के आया। तो ये ऐसा विश्वास डॉक्टर साहब का, और इतने सादे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके प्रिंसिपल के पास कार हो। उनके प्रिंसिपल का बहुत शानदार ऑफिस, मेरे लिए बहुत शानदार ऑफिस बनवाया है सामने, और कह तुम कार ले आ। मैंने क्या कहूँगा डॉक्टर साहब को, मुझे कहता हूँ नहीं, मेरे प्रिंसिपल के पास कार होनी चाहिए। और मैंने क्या, मेरे वो
जब ऑफिस बनाया तो टेबल बड़ा नया बना लिया, और वो बड़ा टेबल ऑलरेडी जो टेबल था प्रिंसिपल बड़ा मैंने पीछे डायरेक्टर के दफ्तर में रखवा दिया। डॉक्टर साहब ने मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब बैठेंगे इसमें, तो आके देखा तो वो बाहर पड़े थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बाहर क्यों रखवा दिए? तो नहीं मेरे तो वही ठीक है, ये तेरे किसी को एडमास्टर वगैरह को देते, ये मेरे तो वही ठीक है। इतने सादे, पीछे एक 7वीं क्लास के विद्यार्थी की दी हुई महात्मा गांधी की एक फोटो अपने पीछे लगा रखी थी, वही उनका आदर्श, वही शेर और वही उनका अपना तौलिया और अपना। लेकिन एक बात जरूर कह दूँ, शायद परिवार के लोग जानते हैं, जैसे इधराम भाई साहब तो एक परिवार में सब कुछ रहते हुए भी, मेरी मौसी मौसा के रहते हुए भी, हमारी भाभी के रहते हुए भी ये मिर्च और रोटी खा के चल बनते थे। अब टेलीफोन आ गया तो चल दिए इनके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी रिच डाइट लिया करते थे, फुल्का तो केवल एक ही लिया करते थे, लेकिन दूध का और जलेबी का उनको बड़ा भारी शौक था, और लड्डू का। और जब कभी मेरे बच्चे जीत करके आते तो डॉक्टर साहब कहते राजाराम जी इनको मेरी तरफ से अपने जेब में से पैसे निकाल करके इनको दूध और जलेबी बच्चों को दाब के खिलाओ। और जब कभी शायद वो बाकी तो किसी को ऑफर नहीं करते थे, लेकिन मैं जब जाता तो माता जी के टाइम में तो कहता थोड़ा आम रस बना के दो राम जी को, और या फिर वो मतलब किसी तरह से वो मेरी जलेबी ला दो, एक लड्डू ला दो। तो मैं जब बताता लोगों को कि नहीं, हमें तो ये बताते हैं घड़े में पानी पीना तो वो पड़ा के घड़ा और पानी पी लो। और कोई ज़्यादा बैठ जाता तो ये और कहते हैं कि ठीक है अब आप काम करो, ठीक है अब काम करो, ये विशेषता थी। लेकिन हमारे जगह भी दावतें नहीं थी, कभी दावतें नहीं थी। बहुत लंबे टाइम तक डिस्कशन किया करते थे, बैठते थे। तो ऐसे महापुरुष को की प्रतिमा भाई सुदन साहब ने लगाई है। मैं कहता हूँ कि सुदन साहब हम तो पूरे के पूरे आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और आत्मा में तो हमने बसा रखे स्टैचू, लेकिन ये जेल में पैसे नहीं थे लगा नहीं पाए, लेकिन आपने पहल की है तो अब स्टैचू में पता नहीं कितनी लगेगी, लेकिन आपने पहल की है। और दूसरा निवेदन, अभी भाई साहब ने जो कहा ये कई बार बहुत अच्छी बात बोलते हैं, और हायर एजुकेशन की, और वो क्वालिटी एजुकेशन हायर एजुकेशन कॉलेजेस बहुत हैं और कंपैरेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से बढ़िया भी हैं, लेकिन आपसे अपेक्षाएं समाज को बहुत ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। तो निश्चित रूप से आप उन अपेक्षाओं को पूरा करोगे, और हम लोग हमेशा आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहेंगे। जब कभी भी अब बार मन करेगा नौजगे में आने के लिए, और नहीं तो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आने का मन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सुंदर सा लेख आपने उसमें अखबार में दिया है भाई ललित जी, आपको तो उसको जो ब्यूटीफाई किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है। I now request Dr. Dharmveer to please come to the stage and share his feelings. नमस्कार। आज हम उस महान शिक्षाविद पिता हो गए। उन्होंने 70 साल की नौकरी की, जिसमें 39 साल उन्होंने बिल्कुल फ्री कार्य किया। एक बच्चे को इतनी मेहनत और लगन से वो देखते थे। तो मैंने कुछ खास बातें नोट की, उनमें से मेन था डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन उनका चाहे निजी जिंदगी में हो चाहे स्कूल में हो, उसमें एक मिसाल ही थी। फिर गंगानगर में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन उन्हीं का था। चाहे वो लाइफ में हमेशा सुबह 5 बजे उठते थे, बिल्कुल सादा भोजन और बिल्कुल सादे कपड़े पहनते थे। इसके बाद स्कूल में जाते तो इतना भयंकर डिसिप्लिन कि टीचर्स भी उनके ऑफिस के आगे से नहीं जा सकते थे। स्टूडेंट तो दूसरी बात है, लेकिन हमेशा इन्होंने उसको लाइफ तक सपोर्ट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
दूसरा जो मैंने नोट किया उनका लक्ष्य उनका, जब वो 7वीं क्लास में थे तो उनका पिता का साया उनसे उठ गया था, तो उन्होंने सारी जिम्मेवारी पूरे परिवार की, भाइयों की इतनी मतलब उन्होंने संभाली कि हम उसको भूल नहीं सकते। वो जब 7वीं क्लास में थे तो 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे और उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि हर एक बच्चे को बहुत बढ़िया समझ आ जाता था। तीसरी बात जो मेन थी, उनका त्याग, समर्पण और सेवा। जो भी कार्य करते थे उनका एकदम पूरा उसमें शिद्दत के साथ उसके साथ जुड़ जाते थे और जिस किसी से भी प्यार करते थे अपनी आत्मा से प्यार करते थे। जैसे ललित जी हैं, पी सदन जी हैं, तो उनका पूरा हमेशा वो हमें ही मतलब क्या कई बार कहते थे कि बढ़ो तो ऐसा बढ़ो, वरना मतलब क्या है कि आप पूरी अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करो। और जो चौथी बात हमने नोट की वो सादा जीवन, तो बड़ी सादगी उनके जीवन में थी, बड़े सिंपल रहते थे। पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्ते पजामे में लगभग निकाल दी थी। कई बार हम घर होते थे तो IAS वगैरह मिलने आते तो उनके पास जाते गए ये मदन गोपाल जी, तो फिर उनके पास फिर वो 1 घंटे तक बैठे रहते और फिर पूरी सारी की सारी जो है उनसे चर्चाएं होती थी। बच्चों के प्रति उनका स्नेह जो था वो बहुत ज़्यादा था। बच्चों की आंख में देख के वो ये देख लेते थे कि बच्चे में कितना दम है, और जिस बच्चे में उनको दम दिखता फिर वो अपना पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस बच्चे के पीछे पड़ जाते और उसके मंजिल तक हमेशा उसको पहुंचा के रहते थे। ये बहुत सी बातें हैं जो आपने और क्या राजा राम जी ने सबने हमें बताई। इसके बाद वो जो बच्चों से जो प्यार करते थे तो उनके विशेषकर जो ग्रामीण के बच्चे थे उनका उनसे विशेष लगाव था। ग्रामीण में वो हालांकि इससे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बच्चों का ध्यान रखते थे कि इस गांव में ये बच्चा है, ये अच्छा पढ़ सकता है, तो ये अपने पूरी खुद के पास से सेवा करके उसको मतलब घर रख के, चाहे कैसे भी हो। आसाराम से आपका जब नाम आता है तो ये स्टार्टिंग में जब आया तो सब मतलब चिंतित थे कि ये कैसे पढ़ेगा, तो फिर उन्होंने अपना पूरा योगदान दे करके और उसको IAS बनाया। और ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने इन अपना जीवन जो है उन्होंने अपना इसमें लगा दिया। सबसे लास्ट बात थी इनकी माँ के प्रति श्रद्धा। तो माँ के वो हमेशा इतने प्यार करते थे कि वो दिन में करीब 3-4 घंटे अपनी माँ के पास व्यतीत करते थे जब भी कोई बात होती, और लास्ट क्षण तक उन्होंने अपनी माँ की सेवा की। ये अपने आप में बहुत ही मिसाल है। आज इस पर्व पर हम डॉक्टर सदन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी फले। ये हार्दिक धन्यवाद। सभी मित्रों, बहनों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनके छात्र के रूप में उनके साथ निकटता पाने का सौभाग्य मिला, और वे इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे अपने इतने निकट आने दिया। यदि मेरे पिताजी और मेरी माताजी के बाद मेरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए कोई तीसरा व्यक्ति अगर है मेरे को बनाने वाला, तो वो मदन गोपाल जी ही हैं। और वे जब यहाँ होते थे तब तो सीमा संदेश नियमित रूप से पढ़ते ही थे, लेकिन जब वो गांव में भी होते थे तो सीमा संदेश वहाँ तक जाता था, और कभी कभार मैं टेलीफोन पे जैसे उनसे पूछता था तो वो मुझे शाबाशी देते थे कि तुम अच्छा लिख रहे हो। तो आप यकीन जानिए कि जब उनके मुंह से मुझे प्रशंसा के ऐसे 2 शब्द सुनने को मिल जाते थे तो मुझे लगता था मुझे नोबेल प्राइज़ मिल गया है, क्योंकि
न केवल मदन जी बल्कि प्राइमरी स्कूल से आर्य समाज में जिन अध्यापकों ने भी हिंदी पढ़ाया हो, सामाजिक ज्ञान पढ़ाया हो, अंग्रेजी पढ़ाई हो, तो हम जिन लोगों से लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, और आज यदि मैं अपने पिताजी के द्वारा शुरू किए गए 71 वर्ष पुराने सीमा संदेश को अपनी हैसियत के मुताबिक चला पाता हूँ या संभाल पाता हूँ, तो मैं हर रोज़ उन गुरुजन को याद करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा से अपना सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने हमें कलम पकड़ना सिखाया। हिंदी वालों ने हमें हिंदी का व्याकरण या पर्यायवाची या विलोम शब्द सिखाए, या गुरुजी मदन गोपाल जी वगैरह ने हमें साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए। आप उनके व्यक्तित्व की परफेक्शन को देखिए कि वे केवल हिंदी तक वे केवल साइंस तक सीमित नहीं थे। मैं कभी कभार जो वो मेरे प्रति स्नेह रखते थे, मैं कभी गलत उसका इस्तेमाल भी कर लेता था। एक दिन क्लास में हमने सभी क्लास वालों ने कहा ना, पढ़ने का मूड नहीं था, साइंस जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट। तो मैंने वैसे कह दिया, मैंने कहा गुरुजी आज साइंस के अलावा कुछ और सुनाओगे क्या? तो उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं माना और उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूरे पीरियड तक पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ हमें बताया। तो इतना विशाल व्यक्तित्व था भाई, जिसने इतिहास में पूरे राजस्थान में गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया, जो साइंस में ग्रेजुएशन कर चुके थे, और इसके अलावा भी वो उम्र भर, मुझे पता है कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया नियमित रूप से पढ़ते थे और मैं अक्सर शाम को उनसे मिलने उनके घर पर चला जाता था। तो मुझे जो संस्कार उन्होंने दिए, तो मुझे बड़ा गर्व होता है जब वो कभी भी मेरे नाम को लेकर के कभी कभी कहते थे, भाई तेरा अखबार पढ़ते पढ़ते कई बार तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो मुझे ये अपने आप पर बड़ा मान होता था कि जिन अध्यापक गुरुजी का मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ दुनिया में, वो मेरे लिखे को या मेरे अखबार को इतने चाव से पढ़ते हैं। तो मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी भी उनको नहीं भूल पाऊँगा और मैं अभी तक सही रास्ते पे चल रहा हूँ, या मैं अखबार को सही रास्ते पर जहाँ तक मेरे लिए संभव होता है, क्योंकि मेरा अकेले का सीमा संदेश नहीं है, हम 4 पार्टनर्स हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि न तो अपने पिताजी का सिर नीचा होने दूँ और न ही मेरे गुरुजी का सिर नीचा होने दूँ। वो आज भी मेरे पथ प्रदर्शक के रूप में, एक लाइट हाउस के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और फकिंदर सूदन ने आज जो करिश्मा करके दिखाया है, इसके लिए तो मैं कहूँगा कि आज सूदन ने जो है वो मेरे से ज़्यादा नंबर मेरे ख्याल से मदन जी के उसमें नज़रों में पा लिए हैं। और जितनी तन्मयता से, जितनी बारीकी से सूदन ने व्यक्तिगत रूप से वहाँ उस कलाकार के पास बैठ करके इसे गढ़ा है। आप कभी इस तस्वीर प्रतिमा के सामने जाकर देखिएगा, आपको लेश मात्र भी महसूस नहीं होगा कि ये जीवित है या ये उनकी प्रतिमा है। इसके लिए सूदन साहब ने जो परिश्रम किया है, जो पहल की है, और ये चाहे विधिवत रूप से स्कूली जीवन के अंदर उनसे न पढ़े हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जब जम्मू कश्मीर से गंगानगर आए थे तो ये शायद निश्चित नहीं थे दिमागी रूप से कि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा या नहीं पढ़ाऊँगा। ये शायद जस्ट एक्सप्लोर करने आए थे, या पूरी कहानी मेरे को पता नहीं है। लेकिन मदन जी ने इनको साफ कह दिया कि तुम यहीं रहोगे और यहीं मेरे कॉलेज में पढ़ाओगे। आप बॉटनी में तो पोस्ट ग्रेजुएट थे ही, बाद में डॉक्टरेट किया। लेकिन इन्होंने अपनी संस्था को चलाने में गुरुजी के आदर्शों को, उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण भाव को और विद्यार्थियों से एक पर्सनल रिलेशनशिप कायम रखने को
आज मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है कि सूडान हम सब में से सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है, जब इसको कभी हांगकांग से, कभी अमेरिका से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी यूरोप से, इसके पास बच्चों के इतने फ़ोन आते हैं और वो इनके बारे में वही बातें कहते हैं जो ये खुद सूदन और मेरे जैसे लोग या राजाराम जी जैसे लोग मदन गोपाल जी के बारे में कहते हैं। इसलिए असल में पपिंदर सूदन ने अपने आप को उनका असली, मैं कहूँ कि वारिस अपने आप को साबित किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आर्य समाज संस्थान भी अपने परिसर में उनका एक प्रतिमा लगाए, ताकि पता लगे कि ये विद्यालय और महाविद्यालय जो है वो किन के खून पसीने से और किन के द्वारा सिंचा गया था। और इसके लिए उन्हें खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, क्योंकि मदन गोपाल जी द्वारा शिक्षा जिनको मिली है, मदन गोपाल जी के सानिध्य में, वो इस मामले में कभी भी उनकी बात को नीचे नहीं गिरने देंगे। जो भी खर्चा आएगा उसको हम सब जो उनसे पढ़े हुए हैं लोग वो उसको उठाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा है कि आर्य स्कूल में, एमडी कॉलेज में बाद में हो सकता है, लेकिन आर्य स्कूल और मदन गोपाल जी एक दूसरे के सिनोनिम थे। इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका न लेता हुआ बस इतना ही कहूँगा कि चाहे आज मदन जी को इस दुनिया से अलग हुए 1 साल हो गया हो, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूँगा या आप सब जो उनसे प्रभावित हैं, हम सब जब तक जीवित रहेंगे उनका उपकार कभी नहीं भूलेंगे और ऐसे ऋण को कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। मदन गोपाल जी जहाँ भी हैं, ईश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और हम सब आज ये संकल्प लेकर जाएं कि हम उन जैसी सादगी, उन जैसी सच्चाई, उन जैसा समर्पण, वो क्या है, चाहे उन्होंने विवाह नहीं किया, चाहे उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन उनके परिवार का दायरा इतना बड़ा है कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उनके बुद्धि पुत्र न केवल उनका नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. And I now invite Dr. P.S. Sudan, our Honorable MD, sir, to please give the vote of thanks. कहाँ से शुरू करूँ? किसी व्यक्ति में एक मिदास टच होता है, जिसको वो छूता है सोना बन जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, जब मैं उनसे पहली बार मिला, इसके लिए मैं डॉक्टर आर.एस. पूनिया का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे उनसे पहली बार मिलाया। मैं बहुत ही कमज़ोर किस्म का व्यक्ति था, मैं कोई अच्छा टीचर नहीं था, मैं कोई अच्छा विद्यार्थी भी नहीं था, मैं बहुत ही साधारण से भी कम था। मुझे जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो मुझे लगा कि इनकी मैं उंगली पकड़ लूँगा तो मैं भी आगे बढ़ सकूँगा। वो मैंने गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन मैंने गांधी जी को उनके अंदर महसूस किया। मैंने पंडित नेहरू को नहीं देखा, लेकिन मैंने पंडित नेहरू को उनके अंदर महसूस किया। वो इतना पढ़ते थे, उनका अध्ययन इतना विस्तृत था। साइंस के वो बेसिकली विद्यार्थी थे, लेकिन इतिहास पर जो उनकी पकड़ थी, यूरोपियन हिस्ट्री पर जो उनकी पकड़ थी, जो बोल्शेविक क्रांति के बारे में जो जिस डेप्थ से वो जानते थे, हर चीज़ का बारे में उनको किसी भी टॉपिक पे बात करें तो वो उसको इतनी शिद्दत से समझाते थे कि वो दिल में बैठ जाती थी। उनकी ज़बरदस्त वैल्यूज़ का तो उनके सामने तिनका भी नहीं है। मैंने इतनी वैल्यूज वाला पर्सन लाइफ में नहीं देखा। मैं इतना त्याग, इतना सिंपल
इतना हम्बल, ह्यूमिलिटी, कमाल की ह्यूमिलिटी थी उनके अंदर। जब भी उनके पास जाते, जा बाहर से चेयर ले आ, बैठ जा, पंखे के नीचे बैठे रहते। एक बार मैं उनके यहाँ टीवी लगा के आ गया, वो स्कूल में थे, मैं पीछे जाके टीवी फिट कराया उनके घर। लेकिन 2-3 महीने बाद ही कहते, तू ले जा इसको वापस, मेरे काम का नहीं है। एक बार मैं उनकी ढानी गया तो मेरे को कहने लगे, देखिए बोलता नहीं है अच्छी तरह से, इसको देख, मोबाइल है, चलता नहीं है, आवाज़ कम आती है इस पर। तो देख के मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये पुराना हो गया है। सावराम जी मेरे साथ थे, मैंने सावराम जी को दूसरे दिन नया मोबाइल लेके भेजा, इनसे नहीं लिया, उन्होंने वापस भेज दिया कि नहीं यही ठीक है, ये मेरा पुराना मोबाइल है, यही अच्छा काम करता है, तू रहने दे इसको। एक बार कहने लगे, मेरे पास यार 3 लाख रुपए, तू ऐसा कर, इसका एक ट्रस्ट बना। मैं, डॉक्टर साहब मेरे को दे दो, मैं उसमें लगा दूंगा। इस 3 लाख रुपए का कहाँ ट्रस्ट बनाता फिरूंगा। हंसने लग गए। तो हमारे बीच एक ऐसा इंसान होकर गुजरा है गंगानगर में, ये हम सब के लिए एक, उनकी जो किरणें हैं, उनकी जो शख्सियत है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी जो एक खुशबू जो आने वाले वक्त में इस आगे वाली जनरेशन के अंदर अगर थोड़ी थोड़ी भी आ जाए, ऐसे व्यक्ति अगर समाज में हों तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि ये संत गंगानगर में हुए, ऐसे व्यक्ति हुए जो दूसरों के लिए जिए। ऐसे महान व्यक्ति के लिए क्या नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने जो सभी आप उनके प्रिय लोग थे, आप सब यहाँ सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। And I thank everybody who is present in the auditorium today for being a part of this Shraddhanjali Samaroh. Thank you so much for coming.